Hello students, in this video lecture we are going to see what are the different 8051 addressing modes. Now let's start with what are addressing modes. We all know that CPU can access data from memory, but for accessing data there are number of ways, and those ways are known as addressing modes. In 8051 there are four addressing modes: immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode, and register indirect addressing mode. There is one more indexed addressing mode, but in your syllabus these four modes are there. Let's start with the first one. First one is a immediate addressing mode. So in this type we are using pound sign. So whenever a specific value is along with the pound sign, then that addressing mode is known as a immediate addressing mode. Here the source operand after this comma, we have already seen that the instructions, whenever we are writing instructions, just see here, first instruction, move A, comma, pound 25H. So after this comma, if there is a pound sign and some value, then that value is considered as a data, which is also known as a source operand, which is a constant value. Okay, so we can directly transfer this constant value into respective register. In this case, the 25H will get loaded in the accumulator register. It can load information into any registers including 16-bit DPTR register. Using immediate addressing mode, we can load any data value that can be of 8-bit or 16-bit. We can load that value into registers. As the DPTR is a 16-bit register, its value accessed as a two 8-bit registers. The higher byte is known as a data pointer higher byte, which is also written as a DPH, and lower byte is written as a DPL. So just see here these two instructions. Move DPL and DPH. So these are indicating data pointer lower byte and data pointer higher byte. The actual data, the instruction is move DPTR with pound sign 4521H. But whenever we want to save or whenever we want to load that data into register, we are storing the lower byte data into data pointer low byte register, that is a DPL, and the higher byte is get stored in the DPH. So this is about immediate addressing mode, in which we can directly load the specific data value into register. We can use EQU directive to access immediate data. So what is this EQU? EQU means, here it is a short form of equate. Okay, so whenever I am writing count EQU 30, it means that count equal to or count equate equal to 30. Okay, so this means whenever in program there is a count word,
that count value is considered as a 30. So next instruction, move R4 comma pound count. So here the count value becomes 30. So that 30 value get loaded into R4 register. But as 30 is a decimal number, it will get converted into hexadecimal number, which is 1EH, and that value gets stored in R4 register. After that, move DPTR pound sign my data. And the next instruction, one more directive is used, which is ORG, indicating origin, means from which point we are storing data. So here ORG200H is indicating we are going to store the data from location 200H. We can also use immediate addressing mode to send data to 8051 ports. So here directly it is written P1, which is indicating port 1 register. So 55H is directly sent to the port 1 register. Now the next addressing mode is a register addressing mode. As the name is indicating, registers, we are copying contents of one register into another register. So here it is written, use registers to hold the data to be manipulated. तो जब भी हमें कोई डेटा कॉपी करना है किसी और रजिस्टर में, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना है, तब हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे. So it is written move A comma R0. This means the contents of R0 get copied into accumulator, into A register. Move R2 comma A. Copy the contents of A register into R2. We already know that whenever we are writing instructions, move A. So here A is acting as a destination. And after comma, whichever value is there, that is actually source data or source memory location or source address. So like this, we can in this addressing mode, we can transmit, we can copy or add data of various registers. Now the main requirement of this kind of addressing mode is, whenever we are using these instructions, the source and destination registers must match in size. It means, see the instruction move DPTR comma A, where we already know that A is a 8-bit register and DPTR is a 16-bit register. तो जब भी मुझे A के 8-bit डेटा DPTR में कॉपी करना है, वहाँ पे लोड करना है, then as the DPTR is 16-bit register, the system will give an error. तो जब भी DPTR में कोई डेटा मूव करना है, तो रजिस्टर साइज, जो रजिस्टर से DPTR में डेटा मूव करने वाले हैं, वो रजिस्टर का साइज भी 16 बिट होना ज़रूरी है. नहीं तो फिर DPTR का डेटा भी हमें पता है कि हम लोग 2 बाइट्स में 8 बिट में लिख सकते हैं. So after writing it into 8-bit data, we can transmit, we can copy the contents of that DPTR register into some other register. So here it is written move DPTR 25F5H, where F5 is a lower byte, 25 is a higher byte. So whenever I want to save this particular 16-bit data, I can save it in 2 different registers. So whenever I am writing move R7 comma DPL, it is indicating that DPL is F5. So F5 value is being copied into the register R7. And whenever I am writing DPH,
it means 25 value. So that will get copied into register 6. So in this type of addressing mode, we need to keep in mind that whenever we are writing instructions, in that instructions, both the registers, destination register and source register, that should be of same size. And the third main point is the movement of data between Rn registers is not allowed. Means I cannot copy the contents of R1 register into R2 या फिर R2 registers into R6. So that kind of data transfer is not allowed in case of register addressing mode. Third addressing mode is direct addressing mode. As the name is indicating, we can give direct address of the location in the instruction where we want to save the data or from where we need to read the data. So we can directly write that particular address. So it is most often used to access RAM locations 32/7FH, which is also known as a general purpose memory area or scratchpad area. So we are going to use direct addressing mode. We can directly give address of particular location for storing data or for reading data from the memory. The entire 128 bytes of RAM can be accessed. पूरा जो हमारा RAM का एरिया है 128 bytes, that can also be accessed using direct addressing mode. We just need to give particular address. So like this, if I want to access register bank location, we know that there are 4 register banks starting from 00. So whenever I want to access particular register in particular bank, I can write it as a move a comma 4, where 4 is indicating R4 register. So whenever I am writing 4, that is indicating direct addressing mode. So what? In direct addressing mode, it is directly giving me location of R4 register. If I am writing only 4 also, it means that we are copying the contents of R4 into A register. So this is same as that of move A comma R4, where R4 is a one register, A is a one register. So whenever I am writing R4, so this kind of instruction we can write in register addressing mode. At the same time, if the same instruction I want to write, I can directly write 4, where it is indicating the location address of R4 register. Contrast this with immediate addressing mode. अभी ये जो हम लोगों ने 2 एड्रेसिंग मोड देखे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में पाउंड साइन नहीं होता है. पाउंड साइन हमेशा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में होगा, और जहाँ पे भी वो पाउंड साइन होगा उसके आगे जो भी वैल्यू रहेगी, that must be data value. So we are directly copying that data value. Here R4, it is not indicating data. We need to go to R4 register. We need to see what is the data at that particular location, and that data will get copied into A register. It means समझो अगर R4 रजिस्टर में 10H ये डेटा है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में लिखते वक्त मैं डायरेक्टली लिख लेते मूव ए कॉमा पाउंड साइन करके 10H. अभी मुझे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं यूज करना है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करना है, तो मैं लिखूंगी मूव ए कॉमा R4, where it is indicating copy the contents of R4 into A. तो जब भी ये इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, CPU पहले R4 रजिस्टर के लोकेशन पे जाएगा, फिर वो वहाँ पे रीड करेगा कि ओके R4 रजिस्टर में क्या डेटा है, 10H.
then it will copy that data into A. So like this, we can write instructions in direct addressing mode without pound sign. The last two instructions, move R0, 40H. So here there is no pound sign. So 40H is indicating the memory address. So at the address 40H, CPU need to read the data at this location. And after reading, it need to save that content, save that data to register R0. सेम नीचे वाली जो इंस्ट्रक्शन है, मूव 56H, ए रजिस्टर में जो भी डेटा है वो कॉपी करना है, मूव करना है. कहाँ पे करना है? 56H मेमोरी लोकेशन रहेगा, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे ए में जो भी डेटा है वो वहाँ पे सेव करना है. So like this we can use direct addressing mode. The next addressing mode is register indirect addressing mode. अभी यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा. तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे. तो उसको हम लोग रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ऐसे ही बोलते हैं. A register is used as a pointer to the data. Only register R0 and R1 are used for this purpose. तो जब भी मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करूँगी, मैं बस दो रजिस्टर्स मेनली यूज़ करूँगी. दोज आर R0 एंड R1. बाकी के जो रजिस्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम R2 to R7 दैट कैन नॉट बी यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड. R2 to R7 ये जो भी रजिस्टर्स है उसमें हम लोग कोई भी एड्रेस सेव नहीं कर सकते. तो एड्रेस सेव करने के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मीन्स व्हाट? जब हम लोगों ने डायरेक्ट एड्रेसिंग देखा था उसमें हम लोग डायरेक्टली कौन से मेमोरी लोकेशन पे लिखना है वो वैल्यू देते थे. मीन्स 40H, 50H, वो वैल्यू कहाँ पे कौन से लोकेशन पे लिखना है वो वैल्यू देते थे. अभी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा? कौन से लोकेशन पे डेटा लिखना है ये वाला लोकेशन की वैल्यू भी किसी और रजिस्टर में सेव रहेगी. तो वो कौन से रजिस्टर्स हो सकते हैं? तो वो बस दो रजिस्टर होंगे, R0 एंड R1. So whenever R0 and R1 hold the addresses of RAM locations, they must be preceded by the @ sign. So it is indicating, @ sign is indicating address. That particular register contains address value. तो जब भी मैं एड्रेस R0 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है R0 रजिस्टर में जो भी वैल्यू है आई नीड टू कंसिडर दैट वैल्यू एज अ एड्रेस. और वो एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू रहेगी रिस्पेक्टिव वो वैल्यू मुझे कॉपी करनी है ए रजिस्टर में. सेम वैसे है मूव एड्रेस R1. मूव एड्रेस कंटेंट इन R1, वहाँ पे मूव करना है कौन से कंटेंट्स? बी रजिस्टर के कंटेंट्स. सो मूव द कंटेंट्स ऑफ बी इनटू रैम हुज एड्रेस इज हेल्ड बाय R1. R1 रजिस्टर के आगे @ साइन है, इसका मतलब है R1 रजिस्टर में कोई तो भी एड्रेस स्टोर किया है. तो वो एड्रेस जो भी लोकेशन का होगा वहाँ पे बी रजिस्टर के कंटेंट्स मूव करने हैं. See this example. Write a program to copy the value 55H into RAM memory locations 40H and 41H. तो यहाँ पे उन्होंने डेटा वैल्यू दिया है 55H और मेमोरी एड्रेसेस दिए हैं 40H एंड 41H. और उन्होंने प्रोग्राम लिखने के लिए बोला है जहाँ पे ये 55H वैल्यू हमें ये दो मेमोरी लोकेशन पे लिखनी है 40H एंड 41H.
So first, using direct addressing mode, we need to give direct address of these locations and we need to copy that 55H data into that location. So just see the solution instructions. First instruction is move a comma पाउंड साइन लिख के 55H. पाउंड साइन लिख के 55H, it means 55H is a data. So we are moving that 55H into A register. अभी हमारा मेन काम है कि हमें 40H एंड 41H ये जो दो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे 55H ये डेटा वैल्यू लिखनी है. अभी हमने ऑलरेडी 55H ये वैल्यू A रजिस्टर में डाल दी. तो डायरेक्टली जब भी मैं लिख रही हूँ मूव 40H कॉमा A, सो इट इज़ इंडिकेटिंग A रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू कॉपी करनी है कहाँ पे 40H लोकेशन पे. और सेम है मूव 41H कॉमा A, अगेन द सेम A रजिस्टर के जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो हमें कॉपी करने हैं 41H मेमोरी लोकेशन पे. तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोल रहा है क्योंकि वी आर गिविंग डायरेक्ट एड्रेस 40H एंड 41H. दीज आर एड्रेसेस इन मेमोरी लोकेशन, एड्रेसेस इन मेमोरी. सो वी आर एक्सेसिंग द लोकेशन and we are copying the data from register A to that specific location. So this is a direct addressing mode. We are directly giving addresses 40H and 41H और वहाँ पे क्या चीज़ क्या डेटा कॉपी करना है वो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं. Now the B part is register indirect addressing mode. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली एड्रेस करना है. तो मुझे मेरा काम तो सेम ही रहने वाला है. मुझे 40H एंड 41H पे 55H ये डेटा वैल्यू वहाँ पे लिखनी है. लेकिन अभी मुझे जो कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करना है तो मैं इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखूँगी. अभी बी वाला पार्ट देखो, मूव ए कॉमा 55H, इट मीन्स 55H ये डेटा वैल्यू ए रजिस्टर में डाल दो. अभी इसका यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एड्रेसेस स्टोर करने के लिए बस दो रजिस्टर्स यूज होते हैं, R0 एंड R1. तो यहाँ पे भी हम लोगों ने हमें डेटा कहाँ पे लिखना है 40H एंड 41H मेमोरी लोकेशन पे. तो ये तो मेमोरी लोकेशंस है. जब भी मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करूँगी तो मैं ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही वो वाले रजिस्टर में डाल दूंगी. तो इसलिए R0 रजिस्टर में 40H ये वैल्यू डाल दी क्योंकि हमें जो लोकेशन एक्सेस करना है वो है 40H. उसके बाद मूव एड्रेस कंटेंट इन R0, मूव द कंटेंट्स ऑफ A रजिस्टर इनटू एड्रेस कंटेंट इन R0. तो अभी R0 में क्या वैल्यू है 40H. तो एड्रेस 40H मतलब 40H वाला मेमोरी लोकेशन हमें एक्सेस करना है और वहाँ पे A रजिस्टर के जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो हमें वहाँ पे कॉपी करने हैं. उसके बाद इंक्रीमेंट R0 में वैल्यू क्या है 40H. इंक्रीमेंट R0 किया तो वैल्यू हो जाएगी 41H. तो जैसे कि हमारा मेन एग्जाम्पल है तो वहाँ पे लिखा है 40H लोकेशन एंड 41H लोकेशन पे हमें 55H ये वैल्यू डालनी है. तो वैसे ही एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे हम लोग R0 को तो R0 की वैल्यू हो जाएगी 41H. तो उसके बाद जब मैं इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ मूव @R0 कॉमा A, तो इट इज़ इंडिकेटिंग A रजिस्टर के कंटेंट मतलब 55H हमें लिखना है कहाँ पे R0 के अंदर जो भी वैल्यू है वो एड्रेस पे. तो अभी R0 के अंदर वैल्यू है 41H क्योंकि इंक्रीमेंट R0 किया तो वैल्यू बन गई 41.
तो 41H ये जो वैल्यू है वो एड्रेस कंसिडर करनी है। तो जहाँ पे भी मेमोरी में 41H ये वैल्यू होगी वहाँ पे ए रजिस्टर के कंटेंट मतलब 55H कॉपी हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज विदाउट अ लूप, और अभी देखना है हमें विथ अ लूप। अभी लूप वहाँ पे जनरेट करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो सेम इंस्ट्रक्शन हमें 55H मूव करना है, तो इसलिए वो वैल्यू ए रजिस्टर में डाल दी, R0 रजिस्टर में 40H डाल दिया। और अभी यहाँ पे जो कि हमें लूप कंसिडर करना है, हमें बस दो मेमोरी लोकेशन पे ही डेटा डालना है, 40H एंड 41H। तो इसलिए दो काउंटर की वैल्यू 2 यूज की। यहाँ पे लिखा है देखो लोड काउंटर। ओके, सो R2 की वैल्यू 2 कंसिडर की। उसके बाद लिखा है अगेन, लिख के कोलन दिया है। सो हियर आफ्टर इट इज इंडिकेटिंग दैट लूप। ओके, सो मूव एड्रेस कंटेंट इन R0 कॉमा ए। तो इसका मतलब है ए के जो कंटेंट्स है, अभी ए के कंटेंट्स क्या है? 55H। वो हमें मूव करने हैं कहाँ पे? एड्रेस कंटेंट इन R0। तो R0 में भी कौन सी वैल्यू है? 40H। तो 40H ये मेमोरी लोकेशन पे जाके ए रजिस्टर के कंटेंट मतलब 55H वहाँ पे कॉपी करना है, तो वो कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट R0, अभी R0 की वैल्यू हो जाएगी 41H, और 41H होने के बाद एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखी है DJNZ R2 अगेन। तो यहाँ पे इसका मतलब है डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R2। अभी R2 कितना है? R2 की वैल्यू हमने देखी थी 2। DJNZ मीन्स डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट R2 को डिक्रीमेंट करो तो वो बन जाएगा 1। डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R2। अभी R2 की वैल्यू क्या है? डिक्रीमेंट करने के बाद 1 हो गई, तो नॉन जीरो है। जंप इफ नॉट 0, तो नॉट 0 वैल्यू है, 1 है उसकी वैल्यू। तो जंप इफ नॉट 0 कहाँ पे जंप करना है? अगेन, तो मतलब वापस से अगेन पे आएगा। तो अभी यहाँ पे आने के बाद मूव @R0 कॉमा ए। तो अभी इसका मतलब होगा ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो जाने के बाद R0 में क्या वैल्यू है? 41H। तो अक्यूमुलेटर के कंटेंट मतलब 55H अभी 41H पे भी चले जाएंगे। उसके बाद वापस से नीचे आएगा इंक्रीमेंट R0, अभी R0 की वैल्यू बन जाएगी 42H। डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R2। तो अभी एक बार इसमें आके गया ये वाले लूप में, तो तब R2 की वैल्यू 1 हुई थी। अभी डिक्रीमेंट किया तो R2 की वैल्यू बन जाएगी 0। सो डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0, अगर 0 नहीं है तो ही फिर अगेन पे जाना है, लेकिन अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कैसे काम करता है? अभी ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे डेटा डायनामिक कंसिडर हो सकता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोगों को डेटा स्टैटिक बन जाएगा, वो चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी हम लोग लूप कंसिडर करते हैं तो वो लूप कंसिडर करने के लिए वो जो लूपिंग होता है दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे ये हम लोग एड्रेसेस हैंडल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लूप्स डाल के भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस रन कर सकते हैं। अभी ये एक एग्जांपल देखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर 16 रैम लोकेशंस स्टार्टिंग एट रैम एड्रेस
60H। तो अभी क्या करना है, हमें 16 रैम लोकेशंस को क्लियर करना है। क्लियर करना है मतलब जीरो वैल्यू करनी है, ठीक है। तो क्लियर ए रजिस्टर को क्लियर कर दिया। मूव R1 पाउंड साइन करके 60H। तो हमें कहाँ से 16 रैम लोकेशंस क्लियर करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 60H। तो इसलिए हम लोगों ने R1 रजिस्टर में 60H ये वैल्यू डाल दी। और मूव R7 16। अभी यहाँ पे ये 16 क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज शोइंग काउंटर, क्योंकि हमें 16 रैम लोकेशंस को क्लियर करना है। तो हर एक बार न्यू इंस्ट्रक्शन लिखने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लूप यूज कर रहे हैं। तो वो लूप हमें कितनी बार रन करना है, 16 बार रन करना है। तो इसलिए हम लोग मूव R7 60 ऐसे काउंटर यूज करेंगे। वापस से अभी लूप दिया है, मूव @R1 ए में जो कंटेंट है, ए में क्या कंटेंट है, हम लोगों ने क्लियर ए लिखा था, मतलब ए के जो भी कंटेंट है वो अभी जीरो हो गए। तो ये जो जीरो है, जीरो मतलब क्लियर जो करना है @R1, मतलब R1 में जो भी एड्रेस लोकेशन है वहां पे। तो 60H हम लोगों ने लोकेशन R1 रजिस्टर में डाला है। तो 60H लोकेशन पे जाएगा और वहां पे जीरो लिख देगा, क्लियर कर देगा, जो भी वहां पे डेटा होगा वो क्लियर कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट R1। तो अभी R1 में क्या वैल्यू होगी आफ्टर इंक्रीमेंट, 61H। डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो R7। अभी पहले R7 की वैल्यू थी 16, अभी हो जाएगी 15। तो डिक्रीमेंट मीन्स 15 हो गया। जंप इफ नॉट जीरो, जीरो वैल्यू नहीं है तो अगेन पे जंप करना है, तो वापस से वहां जाएगा। नाउ इट विल अगेन चेक मूव @R1 ए। मतलब अभी R1 रजिस्टर में क्या वैल्यू है, 61H। तो ए के कंटेंट्स 61H पे लिखे जाएंगे। तो ए में क्या कंटेंट्स है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो 61H पे भी जो भी डेटा होगा वो क्लियर किया जाएगा। अगेन इंक्रीमेंट R1, अभी R1 की वैल्यू हो जाएगी 62H। डिक्रीमेंट इफ जंप नॉट जीरो R7, अभी R7 की वैल्यू हो जाएगी 14, वो भी नॉट जीरो है, तो वापस से वो अगेन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से वो 16 टाइम्स अक्यूमुलेटर या फिर ए रजिस्टर का जो क्लियर डेटा है, मतलब जीरो डेटा है, वो नेक्स्ट 16 रैम लोकेशंस पे लिख लेगा। तो इस तरीके से डेटा हैंडल करने के लिए हम लोग रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। ये एक वैसा ही प्रोग्राम है जहाँ पे 10 बाइट्स ऑफ डेटा लिखना है, कॉपी करना है एक 10 बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम 35H टू 60H। तो R0 रजिस्टर में 35H लिख लिया, विच इज अ सोर्स पॉइंटर। 35H ये स्टार्टिंग वाला एड्रेस है और 60H है डेस्टिनेशन पॉइंटर। और क्या करना है, 10 बाइट्स ऑफ डेटा 35H से जो भी 10 बाइट्स का डेटा रहेगा, मतलब 35H से 45H तक का, तो वो डेटा कॉपी करना है फ्रॉम 60 टू अबव। तो मतलब वो कॉपी हो जाएगा 60 टू 70 पे। तो काउंटर यहाँ पे यूज किया R3 10 का, कारण क्योंकि हमें 10 बाइट्स ऑफ डेटा कॉपी करना है। मूव A@R0, तो मतलब R0 में क्या है, पहले 35H है, 35H पे जो भी वैल्यू है वो पहले ए रजिस्टर में डाल देंगे, क्योंकि हमें डेटा कॉपी करना है। तो स्टार्टिंग वाला एड्रेस 35H है, तो ये लोकेशन पे जो डेटा है वो हमें कहाँ पे कॉपी करना है, 60H लोकेशन पे। तो इसलिए लिखा एड्रेस ऑफ R0, मतलब R0 पे
35H है, तो वो एड्रेस पे जो भी डेटा होगा वो पहले ए रजिस्टर में डालो और फिर उसके बाद मूव @R1 में वैल्यू है 60H, तो 60H ये मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा लिखो। तो अभी जो R0 का डेटा था वो R0 के अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन था वो लोकेशन पे जो डेटा था वो ए में कॉपी हो चुका है और फिर वो ए का डेटा अभी 60H लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट R0 इंक्रीमेंट R1, तो मतलब पहले 35H ये लोकेशन पे जो डेटा था वो कॉपी हो जाएगा 60H लोकेशन पे और उसके बाद इंक्रीमेंट R0 मतलब 36H लोकेशन का डेटा इंक्रीमेंट R1 61H लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा। डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R3, तो R3 की वैल्यू पहले तो 10 थी अभी 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से अप टू जब तक वो 0 नहीं बन जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से हम लोग जो 10 बाइट्स का डेटा है वो 35H से 60H तक कॉपी कर सकते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जो रजिस्टर्स यूज करते हैं जिसमें हम लोग एड्रेसेस स्टोर करते हैं वो बस R0 एंड R1 रजिस्टर्स ही है, दूसरे रजिस्टर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंस R0 and R1 are 8 bits wide, their use is limited to access any information in the internal RAM। ये दोनों जो रजिस्टर्स है वो 8 बिट्स के हैं, तो इसलिए जो हमारा इंटरनल रैम का स्टोरेज है 128 बिट्स का, तो 128 बाइट्स का उतना ही वो इजीली एक्सेस कर पाएगा। Whether accessing externally connected RAM or on-chip ROM, we need 16-bit pointer। एक्सटर्नली हम लोग समझो अगर कोई मेमोरी कनेक्ट कर रहे हैं या फिर ऑन चिप जो रोम है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके एड्रेसेस स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो ये इंटरनल रैम के आगे भी एड्रेसेस मिलेंगे, तो वो एड्रेसेस हैंडल करने के लिए हमें बड़ा रजिस्टर चाहिए। 8 बिट रजिस्टर कम पड़ेगा, तो तब हम लोग 16 बिट DPTR रजिस्टर यूज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अ डेटा पॉइंटर, which is a 16-bit pointer register. So like this, in this video lecture we have seen immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode and register indirect addressing mode. If you are having any queries, then you can ask me in our next lecture. Thank you.